الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، حاضرین جمعہ، میں نے قرآن کریم کی 3 آیات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی۔ پہلے ہم قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے اس میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، ہر نفس کو، ہر سانس لینے والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دنیا میں انسان کے جو بھی اعمال ہیں، کوئی عمل آپ نے کیا ہو اس کا بدلہ نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا، اس کا اعلان اللہ نے کر دیا۔ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، جو شخص آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی ایک تو بہت مختصر ہے، اور جو بھی ہے وہ ایک دھوکہ ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم چاہے جتنے محفوظ گھر بنا کے، قلعہ بنا کے اس میں بیٹھ جاؤ، موت ضرور تمہیں وہاں آ پکڑ لے گی، موت پا لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی تم چلے جاؤ۔ اور تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، یہ بات یقیناً ہے کہ تم موت سے بھاگ نہیں سکتے، تم جتنی بھی بھاگنے کی کوشش کرو گے تمہیں ضرور موت سے ملاقات کرنا ہے۔ ملاقات موت سے تمہاری ہونی ہی ہے، اس بنیاد پر موت سے بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیات میں
ہماری اور آپ کی زندگی کے خاتمے کا بیان فرمایا اور یوں فرمایا کہ اگر زندگی تمہیں ملی ہے تو موت بھی ملنے والی ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں تمام باتوں میں انسانوں کا اختلاف رہتا ہے، کوئی بھی ایک مسئلہ لے لو اس میں ہزاروں اختلافات ہیں، ڈاکٹروں کا اختلاف رہتا ہے، طبیبوں کا اختلاف رہتا ہے، معالجین کا اختلاف رہتا ہے، سائنسدانوں کا آپس میں اختلاف رہتا ہے، تمام اختلافات رہتے ہیں۔ صرف دنیا میں واحد ایک ایسی چیز ہے جو موت ہے، جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ آنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ موت اچانک آ گئی اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اچانک موت آ گئی۔ دیکھیے اچانک کوئی موت نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ موت آنا ہے، کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو موت کا آنا بھی ہمیں معلوم ہے، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بات معلوم ہے کہ موت کبھی بتا کر نہیں آتی، جب بھی وہ آئے گی تو اس کا جب بندے کا وقت پورا ہوگا آ جائے گی۔ تو اس میں اب اچانک والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے فکر پڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے دل غافل ہو گئے ہیں اور ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑ گیا، ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے۔ اس بنیاد پر یہ ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اچانک موت آ گئی۔ یہ قرآن کریم کی تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی موت کا تذکرہ فرمایا کہ موت سے بچ نہیں سکتے، چاہے جتنے محفوظ قلعے میں چلے جاؤ موت وہاں بھی آ جائے گی، موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت تمہیں پکڑ لے گی، موت سے ملاقات تمہاری ہونی۔ تو پھر موت کی تیاری بھی کرنا چاہیے، فکر آخرت بھی کرنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے بھی آپ کو سنائی، ان هذه القلوب تصدع، کہ یقیناً جو ہمارے دل ہیں ان دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ ایسے لگتا ہے کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے لوہے پر پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دلوں کو بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے اور ہمارے دل بھی زنگی ہو جاتے ہیں۔ قیل وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، لوہے پر جب زنگ لگ جائے تو ہم تو اسے صاف کر لیتے ہیں، دور کر لیتے ہیں، لیکن دلوں پہ زنگ لگ جائے تو اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ یہ صحابہ نے پوچھا پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دلوں میں جب زنگ لگتا ہے تو اس کو دور کرنے کا نسخہ، اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ یہ دو عمل ہیں جس سے ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ دلوں میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے، دلوں پر جو غفلت آ جاتی ہے، دل جو دھوکے میں پڑ جاتا ہے، دل جو تمام گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو صرف دو باتوں سے دور کیا جا سکتا ہے، کثرت ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ آج ہم بھول گئے موت کو اپنے، اور ہمارے غفلت اور بھول کا عالم یہ ہے کہ آپ دیکھ لو، آپ بھی غور کرنے کی کوشش کرو، بسا اوقات یہ منظر بہت واضح طور پر قبرستان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جب ہم کسی مردے کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر جب اس کی تدفین کا عمل شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو تدفین میں لگے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھو گے کہ باقی کے جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام ہنسی مذاق میں مشغول رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام کچھ نفع نقصان کی اور دنیا کی اور جو دھوکے دینے والی چیز ہے اس کاروبار کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ بتاؤ اس سے زیادہ زنگ ہمارے دلوں پہ اور کب لگے گا کہ موت
आ चुकी है, हम अपने एक भाई को दफनाने के लिए गए हुए हैं लेकिन अपनी मौत से बेखबर है। मौत से किसको रुस्तगारी है, कल तुम्हारी आज हमारी बारी है। इस तरीके से मेरे अजीज दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गफलत है जो इंसानों के दिलों पे पड़ गई है, और ये गफलत दूर होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नुस्खा बतलाया कि मौत कसरत से याद करो और कुरान पाक की तिलावत करो। ना हम मौत कसरत से याद करते हैं, और हमें तो मस्जिद में रुकने का ही टाइम नहीं, कुरान की तिलावत कब करेंगे, कब हम अल्लाह के इस कलाम को पढ़ेंगे, कब इसके जरिए से अपने दिलों के जंग को दूर करेंगे। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये दो अमल हमें करना है। और ये बात याद रखें, आज हम इस गफलत में रहते हैं कि हमारी अभी जवानी है, अभी उम्र ही क्या है, अभी तो हम बहुत कुछ दुनिया का मजा ले लें, जिंदगी गुजारने की अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसके एंजॉय करने में हम सब लगे हुए हैं। लेकिन याद रखें, फरमाया कि तुब आंसू कुल्ला अब्दिन यौमल क़ियामा अला मा माता। हर इंसान क़यामत के दिन जो उठाया जाएगा वो इस तरह उठाया जाएगा जिस तरह की उसकी मौत होगी। कमा तईशूना तमूतूना, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। कमा तमूतूना तुब असूना, और जैसी मौत आएगी वैसे ही तुम्हें तुम्हारी कब्रों से अल्लाह उठाएगा। इसलिए कभी ये भूल मत रखना, ये गफलत में मत रहना कि अभी तो हम जो करना है कर लें, फिस्को फुजूर की जिंदगी गुजार लें, आखिर वक्त आएगा तो तौबा कर लेंगे, अल्लाह गफूर रहीम है। देखिए, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, उसके गफूर रहीम होने में कोई शक शुबा ही नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह ताला आदिल भी है, जालिम नहीं है। अल्लाह इंसान गफलत भरी जिंदगी गुजारता है और 50 साल इंजॉय के और मस्ती के साथ जिंदगी गुजारता है। जिसकी रातें नंगी फिल्मों के देखने में गुजरती हो, जिसकी रातें शराब पीने में गुजर जाती हो, जो रात भर म्यूजिक और डांस और इस तरीके के तमाम महफिलों में जिसने रात गुजार दी हो, 50 साल का एक अरसा उसने गुजार दिया हो, और वो ये सोचे कि आखिर में हमें अच्छी मौत आ जाएगी, ये कैसे हो सकता है? याद रखना, ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने बनाया है। कमा तईशूना तमूतूना, अल्लाह का ये कानून है, जैसी तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी वैसी ही मौत तुम्हारी आएगी। अगर तुम्हारी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजरी, फर्मा बरदारी में गुजरी, अल्लाह के कलाम पाक की तिलावत में गुजरी, इबादत और रियाजत में गुजरी, अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजरी, सुन्नत और तमाम उसके लवाजिमात के साथ में, आमाल सालिहा के साथ में, तकवा तहारत के साथ में, पाकीज़गी के साथ में अगर जिंदगी गुजरी तो इंशाअल्लाह मौत भी ऐसे ही अल्लाह सहल तरीके से आ जाएगी और बंदा खुशी खुशी रब से मुलाकात के लिए चला जाएगा। और अगर जिंदगी फिस्को फुजूर में गुजरी, गुनाहों में गुजरी, नाफरमानियों में गुजरी, जुल्म और जबर में गुजरी, दूसरों का हक छीनने में गुजरी, दूसरों की बुराइयां करने में गुजरी, तो कभी ये मत सोचना कि मौत हमारी सालिहीन की तरह आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का ये कानून है। अल्लाह बेशक गफूर रहीम है, लेकिन अल्लाह जुल्म भी तो नहीं करता। 50 साल की तुमने जिंदगी जो जालिमाना गुजारी है और सोचते हो कि मौत अच्छी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर मौत जिंदगी अच्छी गुजारोगे, मौत यकीनन अच्छी आएगी। अगर जिंदगी फिस्को फुजूर में गुजरेगी तो यकीनन मौत के वक्त सख्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी और एक अच्छी मौत नहीं होगी। इस बुनियाद पर आज हम बहुत गफलत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी जिंदगी जैसी तैसी गुजर रही। और याद रखें, एक आलिम दीन ने बहुत बेहतरीन उसूल से समझाया इस बात को। आप समझने की कोशिश करें, अल्लाह वालों की बातें भी बड़ी अजीब होती हैं। फरमाया कि जब हम दुनिया में आते तो हमारे दाहिने कान में अजान दी जाती है, हमारे बाएं कान में इकामत दी जाती है, और जब हम दुनिया से जाते हैं तो उस वक्त
सिर्फ हमारे जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है, ना अजान दी जाती है, ना इकामत कही जाती है, सिर्फ जनाजे की हमारी नमाज अदा की जाती है। ये कह कर के बतलाया कि बस यही जो दरमियान की जिंदगी है, यही एक मुख्तसर जिंदगी है, जो एक अजान होने के बाद जमात के खड़ी होने का जो टाइम मिला है, बस यही एक थोड़ा सा वक्त है जो हमारी जिंदगी का फासला है। अजान और जमात के दरमियान का जो फासला है, बस इतनी हमारी जिंदगी मुख्तसर है। और याद रखें, हमारी जिंदगी कितनी तवील गुजरी हो, लेकिन आखिरत के मुकाबले में बहुत मुख्तसर है। हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात की उन्होंने। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पैगंबर हैं और अल्लाह ने बहुत बड़ी जिंदगी उनको दी थी, एक तवील जिंदगी गुजार के इस दुनिया से गए। 1400 साल से भी जायद उनकी जिंदगी है। 950 साल तो सिर्फ तबलीग में गुजारे उन्होंने। इतनी लंबी जिंदगी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जिब्राईल अमीन ने पूछा हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कि आपने एक लंबा अरसा गुजारा दुनिया में, इस लंबी जिंदगी का वक्फा कैसा पाया, यानी एक लंबी जिंदगी कैसी है आपकी, कैफियत पूछा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अमीन को जवाब दिया कि ये समझ लें आपकी एक घर है जिसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से मैं घर में दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से निकल गया। ये 1400 साल से जायद जिंदगी गुजारने वाले का हाल है, जो अपना हाल बयान कर रहे हैं कि मेरी दुनिया की जिंदगी इतनी मुख्तसर गुजरी कि मेरे समझ में नहीं आया। और फरमाया, मिसाल दी कि जैसे एक घर है जिसके 2 दरवाजे हो, एक घर से मैं दाखिल हुआ एक दरवाजे से और दूसरे दरवाजे से निकल गया। और हमारी और आपकी जिंदगी क्या है? हम तो 50, 60, 70 साल की जिंदगी उम्मन गुजार रहे हैं। आमारु उम्मती मिन 60 इला 70। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जिंदगी तो 60 से 70 के दरमियान ही है। तो हमारी जिंदगी क्या है? इस बुनियाद पर ये कभी गफलत में नहीं रहना कि मतलब तौबा कर लेंगे, बाद में बुजुर्ग बन जाएंगे, बाद में सही हो जाएंगे, अल्लाह गफूर रहीम। नहीं, अल्लाह का कानून भी है कि जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत दूंगा। अच्छी जिंदगी गुजरेगी, अच्छी मौत आएगी। अल्लाह बेशक यकीनन गफूर रहीम है, लेकिन आदिल भी है, अल्लाह इंसाफवर भी है। अल्लाह ने तराजू भी बनाया है हमारे आमाल के वजन के लिए ना, हमें इंसाफ देने के लिए। एक बारीक से बारीक पॉइंट का भी इंसाफ अल्लाह देगा। इसीलिए तो फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी होगी, अल्लाह उसे भी तुम्हारे साथ लाएगा, ज़ाया नहीं होगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक राई के दाने के बराबर बुराई होगी, वो भी तुम्हारे साथ होगी। क्यों? इसी बुनियाद पर कि हमें अच्छी जिंदगी गुजारना चाहिए। हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शरह में फी अहवाइल मौता वल कुबूर में ये बात वाक़या नकल फरमाया है। मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। तो उसमें लिखा कि जब हम उनको दफन करने लगे और जब उनके ऊपर ईंटें लगाने लगे तो एक ईंट सरक गई। अब उनको हमने दफन कर दिया, ऊपर से ईंट लगाकर जब कब्र बंद करने लगे तो एक ईंट सरक गई। और मैं क्या मंजर देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह तो अपनी कब्र में खड़े हो गए और मैं मंजर देख रहा हूँ। मैं घबरा गया कि ये क्या मंजर है। बगौर मैंने देखा कि वो खड़े हो गए, फिर मैंने थोड़ी देर में देखा कि वो सजदे में चले गए हैं और हमने उन्हें लिटाया तो इस तरह था, लेकिन सजदे में मैंने देखा कि वो गिरे हुए। ये कब्रों का हाल कभी कभी अल्लाह ताला जाहिर फरमाते हैं। क्यों? ताकि बंदे के समझ में आए कि जैसी जिंदगी वैसी मौत। हजरत अबू बकर इब्ने ज़ुराआ ज़ारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस। उनके लाखों शागिर्द हैं, हदीसें पूरी जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। आखिरी वक्त आया, शागिर्द तमाम हाजिर थे। उनके शागिर्दों में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, मुंजिर इब्ने शाहजान रहमतुल्लाह अलैह, अबू हातिम, ये पाए दर्जे के अपने जमाने के बड़े बड़े शागिर्द, वो सब जमा हैं। आखिरी वक्त है,
पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाते पढ़ाते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरी है। लोगों ने सोचा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि भाई जब किसी का आखिरी वक्त आए तो उस मौके पर उसे कलमे की तलकीन करो, और ये तो हमारे उस्ताद हैं, पूरी जिंदगी तो इन्होंने ही हमें हदीस पढ़ाई है, तो हम कैसे इन्हें तलकीन करें। तो शागिर्द आपस में मशवरा करके कहने लगे कि हम इनके सामने सनद पढ़ते हैं। सनद कहते हैं हदीसों की जो रावी होते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक जो सिलसिला जो बीच में बताने वाले लोग हैं उन्हें रावी कहा जाता है। तो उनकी सनद हम पढ़ेंगे, और सनद जैसी हम पढ़ेंगे हमारे उस्ताद को हदीस याद आ जाएगी, वो खुद पढ़ने लगेंगे। इमाम मुस्लिम, इमाम मुंजिर, इमाम अबू हातिम अपनी अपनी सनद पढ़ रहे हैं, सनद पढ़ रहे हैं। जब सब सनद पढ़ के खामोश हो गए, अब हजरत इमाम अबू बकर ज़ुराआ राजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद शुरू करते हैं और कहते हैं अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। इमाम मुस्लिम बयान करते हैं कि जब हम अपनी सनदें पढ़ गए, इमाम अबू ज़ुराआ ने भी अपनी सनद बयान की कि मैं ये रिवायत करता हूँ, जिसे रिवायत किया है मुआज़ इब्न जबल रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। वो रिवायत करते हैं प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसका आखिरी कलाम, जिसकी जिंदगी की आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह होगी, तो फरमाते इमाम मुस्लिम कि जब उस्ताद ने अपनी सनद के साथ पूरी हदीस बयान की कि मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब दखलल जन्नह पे पहुंचे तो आपकी रूह परवाज कर गई। ये क्यों कि कमा तईशूना तमूतून, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी, व कमा तमूतूना तुबअसून, और जैसी मौत आएगी वैसे ही हश्र होगा, वैसे ही कब्रों से उठाया जाएगा। इस बुनियाद पर फिस्को फुजूर में अगर जिंदगी गुजरती है, नाफरमानियों में गुजरती है, गाना गाते हुए और सुनते हुए गुजरती है, तो मौत भी इसी तरह आएगी। अगर सालिहीन की तरह इताअत में, रियाजत में, मुजाहिदे में, इबादत करने में सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी, अल्लाह ताला मौत भी अच्छी अता फरमाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनका वाक़या लिखा, हम सब उन्हीं के मुत्तबईन हैं। फ़िक़्ह हनफी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 80% इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़्ह को मानने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं। इमाम आजम है, सारे इमामों में ये बड़े थे। तक़वे का, परहेजगारी का आलम यह था कि 40 साल तक अपनी जिंदगी के बेहतरीन कीमती लम्हात में इशा की वजह से फजर की नमाज पढ़ी। पूरी जिंदगी इन तमाम रातों में क़याम किया है, और बसा औकात ऐसे भी रातें आई हैं कि एक रात में पूरा कलाम पाक पढ़ लिया। इस उम्मत का ये ऐसा बंदा है कि जिसने अपनी जिंदगी में 55 हज अदा किए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिसके हम और आप फॉलोअर हैं, मानने वाले हैं, जिनके तरीके पे हम नमाज पढ़ते हैं। आखिरी वक्त आया, कैसे आया? इनके जमाने का जालिम था अबू जाफर मंसूर, बादशाह था, जालिम था। उसने इनसे कहा कि आप काजी बन जाओ। इन्होंने कहा कि मैं काजी नहीं बनता। बादशाह ने जबर किया, कोड़े मारे कि बन जाओ। कहा तू लाख जतन कर ले। क्यों? इसलिए कि जब मैं बन जाऊंगा काजी तो तू मुझसे गलत फैसले करवाएगा, और जब मैं गलत फैसले दूंगा तो मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता। कोड़े खाना बर्दाश्त कर लिया आखिर, और बहुत अजियत दी। अजियत देने के बावजूद इन्होंने नहीं माना, तो आखिर में उस बदबख्त ने इन्हें खाने में जहर मिला दिया। अब उसी जहर की हालत में जब उन्होंने वो खाना खाया
जहर आलूदा खाना खाया, तो रात भर जेल के अंदर भी इबादत करते थे। आखिर खड़े हो गए और उसी खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत करने लगे, और तिलावत करते करते जहर का असर हुआ, और फिर उसी हालत में क़याम किया और सजदे में गए। अल्लाह ताला ने सजदे में इनकी रूह को निकाल लिया। यह है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो जब जिंदगी अच्छी गुजरती है तो अल्लाह ताला मौत भी ऐसी अच्छी अता फरमाते हैं। हम और आपका अगर ये ख्याल है कि हम जिंदगी चाहे जैसी मजे वाली गुजारें और मौत आए नेक जैसी, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर तो अल्लाह का अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। इस बुनियाद पर हमें कभी ये भूल कर नहीं जिंदगी गुजारना चाहिए कि चलो आगे अभी मंजिलें बहुत है, तौबा कर लेंगे, आगे अभी बहुत बड़ी उम्र पड़ी हुई है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो अल्लाह गफूर रहीम माफ कर देगा। ऐसा नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। आज हमारा हाल क्या है? एक बहुत बड़े मुस्लिम डॉक्टर हैं, उन्होंने एक किताब उर्दू में लिखी है, मैं अभी हाल ही में उसको पढ़ रहा था। इमरजेंसी वार्ड में रहते थे, तो उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में जब मरीज जाता है और अक्सर उनके सामने ही बहुत से मरीजों की मौत वाक़ई हो गई, तो उसमें उन्होंने लिखा है एक पूरा मतलब उन्होंने बुक ही बना डाली कि मेरे सामने जिन लोगों की मौतें हुई तो कैसे मौत आई। ये वाकया मुझे याद आया तो मैंने आपके सामने ये नकल करना चाहता हूं कि अजीज दोस्तों, हमें बड़े होशमंदी के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत है। उन्होंने वाकया लिखा है कि एक मरीज लाया गया हमारे इमरजेंसी वार्ड में, लाया गया, मुआलिजीन ने, डॉक्टरों ने बहुत उसके इलाज करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। आखिर ऐसा मुझे महसूस हुआ कि बिल्कुल इसका आखिरी वक्त है, तो मैंने उससे कहा कि भाई अब तो तेरा आखिरी वक्त है, अब तो ये काम छोड़ दे। काम क्या था उसका? काम उसका ये था कि वो इमरजेंसी वार्ड में भी दाखिल हो गया, मर्ज की हालत में है, आखिरी दिन गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी हालत में उसके पास टेप रिकॉर्ड था, उसमें वो गाना लगाए हुए अपने सिरहाने के पास सुनता रहा। डॉक्टर जब बंद कर देते तो भी वो नाराज होता, झिल्लाता और फिर चालू कर देता। मैंने, डॉक्टर कहते हैं कि बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि शायद इनका आखिरी वक्त है, अब इनको कलमे की तलकीन करो, कलमा पढ़ा दो। बेटे ने लाख जतन किया कि अब्बा ऐसा बोलो, लेकिन अल्लाह का उसूल, अल्लाह का कानून कि कमा तईशून तमूतून, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। लाख बेटे के चाहने के बावजूद, लाख उस इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर मुस्लिम के चाहने के बावजूद जबान से कलमा नहीं निकल सका। आखिर एक फिल्मी गाना गाता रहा और उसी हालत में मौत आ गई। मैं अपने उन नौजवानों को आगाह करना चाहता हूं, जब वो गाड़ियां कार लेके चलते हैं और जो म्यूजिक लगा के चलते हैं और जोर जोर से, और फिर जब एक्सीडेंट होता है और फिर उस वक्त ये होता है कि कलमा पढ़ना भी नसीब नहीं होता और उस वक्त जो मौत आती है, तो बताओ मुझे वो कैसी मौत है? एक्सीडेंट की मौत है, खतरनाक मौत है, और गाड़ी में फिल्में चल रही होती हैं, गाना चल रहा होता है, म्यूजिक बज रहा होता है और उसी हालत में मौत आती है। कैसी मौत है? कमा तईशून तमूतून, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी। आज बेहयाई का आलम क्या है? आज हमारे क्या मर्द, क्या खवातीन, क्या लड़के, क्या लड़कियां, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सब गाने सुनने के, मौसीकी सुनने के, म्यूजिक सुनने के आदी होते जा रहे हैं। सबके मोबाइलों में आप देखो, टटोल कर देखो, पूरी पूरी रात नंगी फिल्में देखने के आदी हो गए लोग। याद रखें, मौत बता कर नहीं आएगी, मौत पहले से इत्तला दे चुकी है कि तुम्हारा वक्त पूरा होगा। हम ये नहीं देखेंगे कि तुम अच्छे सजदे की हालत में हो या किसी बुरी हालत में हो, हमें तो ये कि वक्त पूरा हो गया, तुम्हें लेकर जाना है। आपने नाम सुना होगा, एक टिकटॉक बनाने वाला राना मकसूद था, मुस्लिम जवान था, उसको बड़े अपने खूबसूरती पर, अपने मॉडलिंग पर बड़ा नाज था। किस्म किस्म की फहश और बेहयाई के डांस और गाने, इस तरीके की वीडियो बनाकर डाला करता था। 3 साथी थे, तीनों का एक्सीडेंट हुआ, तीनों की मौत आई, और उस
ریکارڈ جب ہوا اس کا، جو موت آئی اور اس کی جب روح نکل رہی تھی، وہ آج بھی دیکھ لینا جا کے، ویڈیو کلپ موجود ہے آن لائن پر، آپ دیکھ لینا کہ جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو چلانے کی آواز ہوتی ہے، بالکل وہی آواز اس کی روح نکلنے کے وقت کی۔ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، جوانوں، سبھی سے کہنا ہے کہ اپنی زندگی اچھی بنا لو، موت پتہ نہیں کب آ جائے، سب ڈھاک پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، جب موت آئے گی تو یہ نہیں کہ آپ کا یہ کام باقی ہے، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، کچھ نہیں۔ اس لیے موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو کلین کر لو، صاف ستھرا کر لو، اپنے دل کو صاف ستھرا بنا لو، اپنی زندگی کو اچھی بنا لو، توبہ استغفار والی زندگی گزارو، ہمیشہ اچھے کاموں کے ساتھ زندگی میں رہو، پاکیزہ رہو، مطہر رہو، باوضو ہو جائے ہمارا سورج کب غروب ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں اسی لیے تو بتائیں کہ میری امت کبھی یہ نہ کہے کہ میرا نبی کچھ بتا کر نہیں گیا۔ ہر چیز کو بتایا، عذابات قبر کو بتایا، جہنم کے عذابات کو بتلایا، منکر نکیر کے سوال و جواب کو بتایا، کیا نہیں بتایا ہم؟ پھر بھی ہم کہیں کہ اچانک، ایسا کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ غفلت ہے تو ہماری ہے، ہمارے دلوں پر پردہ ہے، دلوں کے زنگ کو دور کرنا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے اور اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ ہم بھی کریں، گھروں میں بھی اپنی عورتوں کو، ماؤں بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو تاکید کریں کہ روزانہ ایک آیت صحیح لیکن گھر میں تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ جب اعمال کریں گے انشاءاللہ اچھی زندگی ہوگی۔ واقعات تو ہزاروں ہیں سنانے کے لیے، لیکن نصیحت ایک واقعے سے بھی کافی ہے۔ کسی کو متنبع ہونا ہے تو ایک واقعے کی نصیحت کافی ہے، ہزاروں واقعات سنا دو، اگر نصیحت نہیں لیا تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اب جو ہے ہماری عمروں کو بہت شارٹ کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پر نوجوان طبقہ آج جو موبائل کے غلط استعمال میں لگا ہوا ہے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ کے واسطے اچھی زندگی گزارے، صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارے۔ یہ سمجھ لیں کہ موبائل، اس کا غلط استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو آپ ایک اللہ کے پاس چیز جو ریکارڈ ہے وہ تو ہے ہی ہے، خود اپنا ریکارڈ گناہوں کا آپ جمع کر رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز اس میں محفوظ ہے، اس کا ڈیٹا محفوظ رہتا ہے۔ کل اسی ڈیٹا کے ساتھ میں رب العالمین کے سامنے کس منہ سے ہم کھڑے ہوں گے؟ اس بنیاد پر ڈیلیٹ کرو ایسی تمام غلط چیزوں کو اپنی زندگی سے بھی، اپنے موبائل سے بھی۔ اچھی چیزیں، اچھے کام، اعمال صالحہ، تقوی کی زندگی، بس اسی پر ہمارا مرنا جینا زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔